but शुक्रगुज़ार हूँ कि नदीम साहब organized this with the Bahri University and your dean as well, the Social Sciences Department. I'm thankful कि आप लोगों ने time लिया, क्योंकि actually आज का जो message है वो आप लोगों के लिए है. Why I say that is because you are the stakeholders, you have the ownership of the state, and in the days to come you will then pass it on to your children. और सबसे इम्पोर्टेंट अभी आते हुए जो है डीन साहब से डिस्कस कर रहा था, एक ओल्ड फिलोसॉफिकल कहना है, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग अनलेस यू नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम. आपको अपना रास्ता ही नहीं पता है कि आगे कहाँ जाना है अनलेस यू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव कम फ्रॉम. एंड that goes as a society, that goes as an individual. And आप शायद कहेंगे कि individual के ऐसे से क्या है, तो I can probably say quite proudly, alhamdulillah, in this room, and I hope this is the case, that 100% of you know who your parents are. And आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आपने अपनी शनाख्त का जो बेसिस है वो आपके नाम के अंदर लिखा हुआ लास्ट नेम के साथ. इमेजिन एक इंसान जिसको पता ही नहीं है अपना बाप कौन है, वो आगे ज़िंदगी में कैसे चलेगा. You probably have seen many movies and documentaries about those people who become billionaires and they don't know about their origins and क्या क्या देने के लिए तैयार नहीं है ये पता करने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, because वो आगे सही तरीके से जा ही नहीं सकते unless they understand who they are and where they come from. तो अपनी शनाख्त को पहचानना, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, अपने ट्रेडिशन को समझना, ये नहीं है कि आपने उसको होल स्वॉलो एंकर सब कुछ ले लिया, लेकिन समझना कहाँ से आ रहे हैं ताकि हमें पता हो कहाँ जाना है. तो ये मुल्क भी इसी तरह से बना था, ये कहाँ बना है और इसको आप लोगों ने कहाँ लेके जाना है. तो आज उसकी डिस्कशन जो है, आई विल ट्राई टू कीप इट एज मुख्तसर एज पॉसिबल, बट टू बी ऑनेस्ट a lecture doesn't do justice to the actual development of this document that is the beginning of Pakistan as we know it. And this is probably the single most important constitutional document in the existence of our history. And why? Aaj tak it still exists and is part and parcel of our constitution today, the Qarardat-e-Maqasid or the Objective Resolution. But I don't know how much you may know or you may not know. और मेरे लेक्चर में एक आदत है कि यूजली मैं दो चीज़ों से शुरू करता हूँ. अगेन जो मैंने आपको अभी एक मिसाल बड़ी दी, you don't know where you're going unless you know where you have come from. So we can't know much about Objective Resolution unless we know where it came from and what was the dynamics and circumstances in which it was born. जब आप वो बात समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा क्यों वो हुआ. तो इसलिए हमारा, we can go to the next slide. The pre-story is important as the story itself. Next slide, please. The Constituent Assembly of India, and I can't go back into the tarikh of 1857 or se pehle and all that. So let's just jump straight to when this whole journey started. When the British ने decide किया कि भाई इन लोगों को हमने आज़ादी देनी है, तो उन्होंने उनसे कहा था कि 45 का जब World War II ख़त्म हुआ तो then उनको इख्तियार मिला the Muslims in India and the INC, the Muslim League, कि आप जो है एक नक्शा बनाएं. And so they had an election. उस इलेक्शन के अंदर जो है मुस्लिम लीग की अक्सरियत में मुसलमानों की वोट बैंक में मिला, जिसके अंदर उनकी असम्बली के अगर आप 300 अफराद थे, उसके अंदर अबाउट 75 और 73 सीट्स टू बी एग्जैक्ट ऑल इंडियन मुस्लिम लीग गॉट. उनका पहला काम क्या था कंस्टिट्यूएंट असम्बली का? कानून साजी, to make the ain, what is going to be the constitution of this new country. But because the Muslim League and the Indian National Congress were rivals and उनके दोनों के नज़रियात अलग थे, right? We all know the history, you should know enough about that, कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद फैसला कर दिया था कि जहाँ जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे हमारा अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम, इफ़ नॉट अ स्टेट, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, बट इट विल बी पोलिटिकली सेपरेट इन वन सेंस और अनदर.
Indian National Congress never accepted this. It never accepted this. और आप अगर इसकी तस्वीर देख लें तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आपको खुद नक्शे में देखें क्या नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो हिस्सा जो अब आज है वो एक ही में उन्होंने ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं समझता था कि पाकिस्तान इज़ लेजिटिमेट। They never supported the creation of Pakistan. That's why Gandhi ji also fell out with Nehru. As a result of that, of course, he was upset that it couldn't happen together. But one of the main reasons is the lack of respect to the Muslim political will. तो जब ये फैसला हुआ तो मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीग के मेंबरान थे, उन्होंने कहा हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मान ही नहीं थे। We don't agree with this कि एक होगा, क्योंकि हमारे तो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो गया, हमने एक फैसला कर दिया और उस बेसिस पे हमें ये वोट बैंक पड़ा है। So what did they do? They boycotted. So when they boycotted the Indian Constituent Assembly of India, उन्होंने अपने करारदाद मकासद बना लिए इंडिया बनाने के लिए। वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद नहीं थे। नंबर 1, ये बात आपको समझना चाहिए। तो क्या हुआ? एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में हुई जहाँ पे मुसलमान उस असेंबली के इलेक्ट हुए थे, लेकिन उसमें मौजूद ही नहीं थे जब 46 में फैसला हुआ कि भाई ये करारदाद मकासद इंडिया के लिए बन रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो व्हाट डिड द मुस्लिम्स डू? दे बॉयकॉटेड। एंड जिसके अंदर जब वो फैसला हुआ, आपको पता है साथ साथ 46 और 47 में बहुत सारी चीज़ें लास्ट मिनट डील्स बनने थे, माउंटबैटन प्लान आ रहा था, और आखिर में रेडक्लिफ साहब आए, उन्होंने एक लकीर खींच ली कि इधर ये बनेगा और इधर ये बनेगा। तो जब ये क्लियरली डिफाइंड हो गया कि पाकिस्तान के हिस्से क्या बनने वाले, वो बिल्कुल अगस्त के करीब 1947 में फिर जून के अंदर पहली कंस्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान जहाँ उसका नक्शा बन रहा था उसका बना। वहाँ पे पहली मुलाकात हुई थी जो लोगों ने बॉयकॉट किया था। फिर वो बैठे जून 1947 में पहली बार, और उसकी ऑफिशियल इफ्तिताह, द फर्स्ट सेशन, जो आज भी आप na.gov.pk पे जाएँ, आप नेशनल डिबेट्स पे जाएं, और वो सारे आज तक भी आपको मौजूद मिलेंगे। और मैं इंकरेज करता हूँ कि शुरू वाले और आज के थोड़े हिस्से के लेक्चर के अंदर मैं ज़रूर शेयर करूँगा ऐसी बातें जो आप हैरान होंगे, एंड मैं 100% गारंटी करता हूँ कोई भी नहीं जानता इधर, क्योंकि आपको ये नैरेटिव, ये एविडेंस, ये कभी पेश ही नहीं किया गया। बिकॉज एक तो नंबर 1, इधर वी हैव बीन वेरी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आवर ओन नेशनल कि हम क्या हैं। दूसरा ये कि जो दूसरे नैरेटिव्स पेश करना चाह रहे हैं वो खुद मेहनत करके कुछ कट इन पीसेस करके, तो आज एक्चुअली शुरू वाले हिस्से में तो आपको ऐसी बातें नज़र आएंगी तो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी और आप हैरान रह जाएंगे एविडेंस के साथ। तो मैं आपको वेबसाइट भी दे रहा हूँ, खुद हमारी नेशनल असेंबली की, खुद जाके आप डाउनलोड करके पढ़ लें जो मैं आज बातें आपको बताऊँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो 1947 में दे गैदर्ड एंड द मुस्लिम लीग, लाइक आई सेड, रिजेक्टेड ऑफिशियली इन जनवरी 1947 के भाई हम आपके करारदाद मकासद और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिया के कुछ भी चीज़ नहीं मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम हैं ही नहीं आपके साथ। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने बस यहाँ पे आपके शेयर करने के लिए पेश किया ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि वहाँ क्या लिखा हुआ था और हमारे पाकिस्तान में ऑब्वियसली क्या है। एज यू कैन सी देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, 2-3। एक तो उन्होंने अपने आप को फेडरेशन नहीं कहलाया, उन्होंने रिपब्लिक कहलाया। एक डिफरेंस आप नोट करेंगे, उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जिक्र ही नहीं किया इंडिया के करारदाद मकासद में। हमारे करारदाद मकासद में है ये बात, इसलिए शायद अब आप अगर इस बात पे गौर और फिक्र करें तो देन यू विल रियलाइज़ कि हमारे रियासत के अंदर पिछले 10 साल में, आई नो यू मस्ट हैव बीन एटलीस्ट थोड़ा बहुत सुन रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट इधर ही 2 ब्लॉक दूर है, क्या क्या चल रहा है जजेस की सिलेक्शन के ऊपर, जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इसी पूरा ख़त लिख दिया जस्टिस सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ था। ये सारे मामला आई एम प्रीटी श्योर टू सम एक्सटेंट, इवन अगर भी आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत तो पता है। वाई आर वी सो जेलसली क्लोज टू दिस आइडिया ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस? बिकॉज हमारे करारदाद मकासद में यह बाकायदा एक नुकात है, लेकिन इंडिया में ये नहीं है। सो दिस इज़ अ स्टार्क डिफरेंस विद दैट। Another one you will notice the influence of Islam and Islamic values. यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि basic freedoms, equality before the law, subject to law and public morality, but it does not mention in light of Islam or as enunciated by Islam in ours. And the other aspect to it that you must see at the end
When they talk about contribution in ours, it talks about the comity of nations throughout the world as well. So hence, मैं थोड़ा बहुत आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि इनके करारदाद मकासद थे और इनने फिर जब वो कानून इनका बन गया, आइन बन गया इनका, तो उन्होंने फिर उस चीज़ को रिमूव कर दिया. Now you will not find this, you will find it in history books, उनका करारदाद मकासद. लेकिन हमारा करारदाद मकासद आज तक भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2A में मिलेगा आपको. नेक्स्ट, the myth of the minority controversy. So let me ask this question. करारदाद मकासद के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो. You probably have heard that इसके अंदर minorities की consideration नहीं की गई. Minorities ने objection दिया था, उसको entertain नहीं किया गया. Correct? I'm pretty sure you may have heard these things before. लेकिन जो एक्चुअल इसका, अगेन मैं कह रहा हूँ, आप नेशनल असेंबली के वेबसाइट की नेशनल डिबेट्स जाके पहला सेशन पार्लियामेंट्री सेशन का निकाल लें. आपको वहाँ के 5 दिन के पूरे मार्च 7 से लेके मार्च 12 तक एविडेंस नज़र आ जाएगा डिबेट में एक्चुअली बात क्या हुई है और किस बेसिस पे हुई है, और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँगा तो अगेन आप शॉक में रह जाएंगे. अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ पोलिटिकली एट राइवल्स विद द मुस्लिम लीग. Indian National Congress never believed in a separate Pakistan. Understand that point very clearly. तो जब वो लकीर ड्रा हुई कि ये बनेगा पाकिस्तान और ये बनेगा इंडिया, उसके अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स उन डिस्ट्रिक्ट्स में थे जो इधर गिर गए पाकिस्तान में, वो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नहीं कहला सकते थे, तो उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया एंड दे कॉल देमसेल्व्स Pakistan National Congress. This is a very important point because you need to understand politics के अंदर they did not want the creation of Pakistan and they did not believe in Jinnah's proposal. Next. बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, यासिर हमदानी साहब एक हैं, 2-3 और भी हैं जो ये बात अर्ज़ करते हैं कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं किया गया. हमारे बहुत मशहूर हामिद खान साहब, आपने सब सुना हो, ये भी यही बात अनफॉर्चुनेटली कहते हैं. ये बहुत मुख्तसर अंदाज से इस चीज़ को पेश करते हैं कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं किया गया. मैंने इनके बुक से कोट लिया है. He said that unfortunately there is a division on the resolution along communal lines. The resolution has sown seeds of suspicion, alienation and distrust amongst the minorities. Quote and quote. ये इनकी मशहूर किताब है Constitutional Political History of Islam, शायद आप of Pakistan, as you may have heard of it before. He said, more prudent to accept some amendments from the proposed representing minorities in order to reach an understanding so that the resolution could have passed by consensus. But unfortunately, he does not tell you the truth, the whole truth, and nothing but the truth. जो bite size आपका narrative जो मिल रहा है करारदाद मकासद के साथ, unfortunately वो एक negative है. अब आपको पूरा पेश करूँगा आज तो आपको समझ में आ जाएगा असलियत इसकी क्या है. Next slide. लियाकत अली खान का, obviously he is known as the introducer of the objectives resolution March 7th में, and हमने ये lecture इसलिए रखा है because it is the 75th anniversary and it is very unfortunate that there hasn't been a conference or major talk or discussion on this, particularly जब 75 years बाद जब इस चीज़ को जो हमारा पूरा मुल्क का एक foundation है, constitutional foundation, उसके ऊपर इतनी गुफ्तगू नहीं है. So I'm happy कि एक बैरियर ने ये किया है, so that I'm here to talk about it. So what did he say? Objective resolution lays emphasis on the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, and further defines them by saying these principles should be observed in the Constitution as they have been enunciated in Islam. तो वही इंडियन करारदाद मकासद के साथ मिलता जुलता है, लेकिन कैवियट क्या है? As enunciated by Islam. Next. उनकी स्पीच के अंदर जो इंट्रोडक्टरी स्पीच है आपको मिलेगा मौजूद concept of sacred trust, concept that Islam recognizes no distinction upon race and color of birth. आपको उनकी स्पीच में मिलेगा कि ये जो सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं as enunciated, इसका मतलब नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट होगा बट और वसी होगा. मतलब as enunciated by Islam के हम जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो इस्लाम के अंदर उसको एक्चुअली और वसी करते हैं beyond the conventional understanding of that. That's what he was proposing. He specifically mentioned these words, if you remember, the principles of democracy, freedom, tolerance and social justice. ये आपको बार बार ये 5 अल्फाज मुख्तलिफ जजमेंट्स में नज़र आएंगे. जजेस इसको कोट करके थक गए हैं.
कि ये चीज़ जो है हमारी एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। एंड देन ऑफ कोर्स उन्होंने ख़ास मेंशन किया अपने स्पीच के अंदर कि माइनॉरिटीज़ को अगर ये फ़िक्र है, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे असेंबली के अंदर माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, कि आपको अगर ये फ़िक्र है, हमने ख़ास इसका ख्याल किया है। इनफैक्ट नेक्स्ट स्लाइड जाएं, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर अगर हम ये मिस्टर प्रेसिडेंट अगर ये फंडामेंटल राइट्स हम देंगे, हमारी ये नीयत नहीं है, इट्स नॉट आवर इंटेंशन टू गिव दीज राइट्स विद वन हैंड एंड टेक देम अवे फॉर अनदर। और राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स उनका कोट खुद पढ़ लें, वी हैव नॉट इग्नोर्ड द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स, इंडीड इट वुड हैव बीन अनइस्लामिक टू डू सो। मतलब दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम कि हमने हमारे गैर मुसलमान शहरियों का ख्याल नहीं किया विद इन द इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम। दिस वुड बी अनइस्लामिक टू डू। इतनी बड़ी बात उन्होंने अपनी स्पीच में की है, और बार बार वो यही बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि डाउन ट्रॉडन क्लासेस, माइनॉरिटी का जिक्र होता है। तो इन हिज इंट्रोडक्टरी स्पीच लियाकत अली खान मेक्स इट वेरी क्लियर, ये हमारी नीयत ही है ना हम चाहते हैं कि करारदाद मकासद इसको इस तरीके से समझा जाए। नेक्स्ट, जब वोटिंग पे आता है तो गेस व्हाट, आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले मेंबरान जो इस तरफ गिर गए रेड क्लिफ लाइन के, उनका नाम क्या है? पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल मुखालिफिन थे, वो पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहते थे। डू यू अंडरस्टैंड? सो दे वर द वंस हु वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, नॉट बिकॉज इट वाज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, not because it didn't talk about fundamental rights or social justices. They were against Qaraardat Maqasid because Muslim League का ये project था. Does that make sense? This is the real reason why they were against it. आप खुद देख लें, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के हमारे 13 मेंबरान थे हमारी तारीख में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, जो 10 लोग ने ऑब्जेक्ट किया वो ही 10 लोग वहीं से हैं। और सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊं, मुस्लिम लीग के साइड पे भी नॉन मुस्लिम थे जो सपोर्ट कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके अंदर ख़ास एक बंदे का मैं आपको जिक्र करूंगा। और मैंने जो 3 ये लाल नाम आपको क्यों हाईलाइट किए, इसके ऊपर भी आपको एक इससे पहले एक कहानी आपको बताऊंगा जो आप शॉक में रह जाएंगे। डू यू नो द फर्स्ट रेजोल्यूशन दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिड ऑन August 12th, 1947 बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? डू यू नो व्हाट दैट रेजोल्यूशन वाज? Liaquat Ali Khan stood up and said, I'd like to move for a resolution that officially we give the title Qaid-e-Azam to Muhammad Ali Jinnah in all our references and documents in there. आज अगर आप लोग Qaid-e-Azam, Qaid-e-Azam, Qaid-e-Azam कहते हैं और हमारे official documents National Assembly में आज तक ये जिक्र होता है, वो इस resolution की वजह से है। वो सबसे पहला resolution था। और आपको पता है उसके मुखालिफिन कौन थे? पढ़ लें आप, यही पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस, बिकॉज उनका कायद जिन्ना कभी नहीं था, उनका कायद नेहरू था। डू यू नाउ अंडरस्टैंड? आपको ये कभी पता था ये बात का? दे डोंट टेल यू दिस इन द बुक्स, दे डोंट टेल यू द ट्रूथ। अगर मैं आपसे कहूँ एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है और वो कहता है मैं नहीं चाहूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म का एजाज़ी तौर पे ये टाइटल हासिल करे, आप इमेजिन कर सकते हैं वो बंदा पाकिस्तानी है? सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वाज नेवर एन इशू अबाउट माइनॉरिटीज़, इट वाज अ पॉलिटिकल इशू। एंड बार बार यही लोग attempt to object, attempt to stop the progress of the creation of the state of Pakistan. हमारे भाई हैं, मैं नहीं कह रहा, देखें माइनॉरिटी की अपनी रिप्रेजेंटेशन है, बट अंडरस्टैंड वो उनका पॉलिटिकल जो पार्टी थी, दे वर अगेंस्ट पाकिस्तान। उनका कायद पाकिस्तान में बैठते हुए नेहरू था। आप समझ सकते हैं? इट्स लाइक जो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी स्टेट और रियासत इतना फ़िक्रमंद होती है कि यहाँ पे पता नहीं रॉ के एजेंट कौन है, तो एक लिहाज से आप समझते वो पहले दौर में तो यही था, बिकॉज दे वर अगेंस्ट मुस्लिम लीग, दे वर अगेंस्ट पाकिस्तान। बट येट बिकॉज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली की वोट जो इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले हो चुका था, तो उनको एक सीट मिल गई थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कंटिन्यूअस, आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, आपको इनकी ऑब्जेक्शंस हर चीज़ पे नजर आएगी। आप सोच सकते हैं कायद आज़म को एजाज़ी तौर पर टाइटल देना कायद आज़म वाज समथिंग टू ऑब्जेक्ट टू। इन लोगों ने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, August 12 की पूरी आप निकाल लें, वो यही डिबेट चल रही है। नहीं, आप इनको कायद आज़म कैसे कह सकते हैं? हम तो समझते हैं कायद आज़म इतना हम्बल इंसान है, वो खुद ये नहीं चीज़ चाहेंगे।
फजूल बात है, नॉनसेंसिकल। लियाकत अली खान ने बहुत मशहूर एक जवाब में अपने कहा, इसने कहा मैं बिब्लिकल लाइन से स्टार्ट करता हूँ अपनी गुफ्तगू, माई फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। और आपको पता है इसकी डिफेंस, ये सबसे मज़ेदार बात आपको पता है कि इसकी डिफेंस इनके खिलाफ आपको पता है किसने बात की? जोगिंद्र नाथ मंडल। जोगिंद्र नाथ मंडल कौन था? हिंदू दलितों का लीडर, एंड ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज कायद आज़म उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे। तो जो पहली नशिस्त हुई थी अगस्त 10 को, उसके अंदर मंडल साहब को बना दिया था कि भाई आप टेम्परेरी प्रेसिडेंसी संभाल लें जब तक कायद आज़म आ नहीं जाए। तो वो 11 और 12 को आ गए। आपको तो देखें एक चीज़ तो ज़रूर याद होगी 11 अगस्त स्पीच, वो इसका जो 1-2 लाइन आप वो जो कंटिन्यूसली हर साल आपको जो है दिया जाता है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव आपको कभी नहीं दिया जाता कि उसकी असलियत क्या है। खैर वो एक अलग गुफ्तगू होगी, मे बी परहैप्स अनदर लेक्चर, उसका भी आपको बताऊं। उसकी हकीकत अगस्त 14 की नेशनल असेंबली डिबेट में खुद पढ़ लें। और कायद आज़म जब खुद माउंटबेटन को कहते हैं ये आपकी गलत फहमी है, माउंटबेटन समझता है वही चीज़ जो आज आपको समझाया जाता है। अगस्त 11 को देखो ये कहा गया था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर सिनेगॉग्स। माउंटबेटन ने ये सुना न्यू दिल्ली में, तो वो जब पाकिस्तान की इफ्तिताह करने आए थे अगस्त 14 को, तो उनको स्पीच करने का मौका दिया था इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। पूरा रिकॉर्ड है। वो कहते हैं आई एम सो हैप्पी टू नोट दैट जिन्ना एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू अ नक्शा ऑन अकबर द ग्रेट। अकबर के ग्रेट के नक्शे पे जा रहा है, इतना लिबरल एक रियासत बनने जा रही है। आपको पता है जो फाइनल नोट जो कायद आज़म ने फिर दिया बाद में, उन्होंने खड़े होकर कहा लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय करेक्टिंग मिस्टर माउंटबेटन, वी आर नॉट इंस्पायर्ड बाय अकबर द ग्रेट बट समथिंग दैट इज मच मोर ओल्डर 1300 years ago by our prophet। तो ये जो बात की गई थी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू योर सिनेगॉग्स, इज एग्जैक्टली द सेम थिंग लियाकत अली खान ने कहा कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि नॉन मुस्लिम्स को हमने राइट्स देनी है। ये सेक्युलर निज़ाम नहीं था। आप खुद इसको कनेक्ट करें डॉट्स, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता। आपको जो है वो कट एंड पेस्ट ताकि पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये इनका कोट खुद उसी डिबेट से आप खुद पढ़ लें। जोगिंद्र नाथ मंडल क्या कहते हैं? व्हेन यू कम टू योर लीडर्स, किससे बात कर रहे हैं? पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस खड़े हुए उसी असेंबली के अंदर। व्हेन इट कम्स टू योर लीडर्स यू आर वेरी अफेक्शनेट टू देम, यू कैन नॉट कॉल महात्मा गांधी एज मिस्टर गांधी। क्या कहते हैं? एजाजी तौर पे हम महात्मा गांधी कहते हैं, इज्जत देते हैं उसको। तो वहाँ मिस्टर जिन्ना तो नहीं है, मिस्टर गांधी तो नहीं है। अब ऑल द सडन यहाँ आप कह रहे हैं मिस्टर जिन्ना को मिस्टर जिन्ना ही कहें, हम कायदे आज़म कह रहे हैं, तो आपको इसका मसला है। कहते हैं इफ़ यू डू नॉट पुट महात्मा बिफोर मिस्टर गांधी's नेम योर हार्ट इज़ नॉट प्लीज्ड। याद रखें, ही इज़ अ हिंदू दलित लीडर, पाकिस्तान नेशनल असेंबली। सिमिलरली इफ वी डू नॉट कॉल मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म, वी आर नॉट प्लीज्ड। इसकी डिफेंस कौन कर रहा है? एक हिंदू दलित। तो ये बात माइनॉरिटीज़ की कभी भी नहीं थी। बात असली ये थी पॉलिटिकल, एंड दिस इज समथिंग यू ऑल शुड नो वेरी वेल। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, समटाइम्स आई डोंट बिलीव माई सेल्फ, go look it up in the National Assembly debates and read it for yourself, and you will see this evidence. Next please. So the hidden truth, the Pakistan National Congress was the same as the Indian National Congress, बस उसके मेंबरान इस तरफ गिर गए. They were political opponents of the Muslim League and all what it stood for, including the Pakistan Resolution in 1940 and even beyond. The same PNC members were the ones who were against giving Qaid-e-Azam the title Qaid-e-Azam. They were against that. And then, like I said, Jugarnath Mandal themselves says कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नेहरू के पंडित नेहरू कहते हैं उनको, महात्मा गांधी कहते हैं, हम भी उनको इज्जत ये देते हैं. आपने ये फजूल बात कैसे छेड़ दी? बिकॉज उनका मकसद था हर रुकावट में, और ये आपको एविडेंस पूरे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में आपको मिलेगा हर दफ़ा, और आगे जाके भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा. सो द ऑपोजिशन टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन by 10 members of the Pakistan National Congress who were the only objectors to it was not on the basis of a question of fundamental rights for minorities. It was on a political basis.
And the PNC was politically opposed to the Muslim League and the movement of Pakistan from the very beginning. ये बात अब क्लियर हो गई. अब ज़रा दिमाग थोड़ा सा डिकन्स्ट्रक्ट हो गया, रिकन्स्ट्रक्ट अब हम हो गए असली नैरेटिव में. अगेन मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात भी यकीन नहीं करते, कोई मसला नहीं है, मैं भी नहीं यकीन करता. गो टू द नेशनल असेंबली वेबसाइट, नेशनल डिबेट्स, रीड इट फॉर योरसेल्फ. मार्च 7 से मार्च 12, 5 आपको PDF मिल जाएंगे वर्ड फॉर वर्ड, हर बात किसने क्या की है वो सब रिकॉर्ड पे. नेक्स्ट, तो ये पास हुआ और इवेंचुअली ये बाद में हमारा आर्टिकल 2A बना. इसका पहला ही लाइन ऑफ कोर्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइन. Sovereignty over the entire world belongs to Allah Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. 3 elements. Mulkiyat is actually in the highest. The sovereignty is with Allah subhanahu wa ta'ala. This is something in your social dynamics and political history आपको ये नहीं मिलेगा. क्यों? Sovereignty is a movement in the secular model belongs to the people. But in our state, it belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. It belongs to God. And that is given as a sacred trust. दूसरी बात, और उस sacred trust को किस तरह से चलाना है? उसको हमने within the Sharia, because the limits prescribed by Him in the sacred, वो हुदूद और हद के माने क्या है? हद, लिमिट, sacred limit. उसके अंदर हमें चलाना है ये रियासत को. So sovereignty does not belong to the people of Pakistan. It has been entrusted to the people of Pakistan by Allah subhanahu wa ta'ala to be run in this manner. Hence why हमारे fundamental rights, कोई भी चीज़ has to be quote enunciated by Islam. Why that is a requirement and why they continue to be a requirement for the state. Next. So the Pakistan's objective resolution की शुरुआत. Next. ये again I've put them, you can find them obviously anywhere, the 12 points. Again मैं differences आपको बता रहा हूँ. एक ख़ास difference यही है, Indian resolution, objective resolution और हमारे करारदात मकासद में, the first line. Then of course we talked about the federation and हमने जो principles as enunciated by Islam है. दूसरे हमारे एक दो और जो additional points है कि मुसलमानों को इख्तियार मिलेगा कि अपनी individual and collective lives कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनको इख्तियार मिलेगा चलाने के लिए. Next. But minorities का भी specific जिक्र है. Adequate provision shall be made for minorities to freely progress and practice their religions and develop their cultures. ये कैसे document है जो minorities का जिक्र नहीं कर रहा? One of the 12 points is specifically for that. And guess what? That's not the only one. Number 10 पे आ जाएं. Adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes. 2 points specifically for minorities. इंडिया के रेजोल्यूशन करारदात मकासद के अंदर माइनॉरिटीज़ का जिक्र है नहीं. और आज अगर आप देख रहे हैं मोदी की रिजीम, दे आर फॉलोइंग द नक्शा व्हाट दे वर बिल्ट ऑन. मेजॉरिटी रूल्स. कायदे आज़म ने तो यही कहा था जब गांधी साहब आए थे, कहते भाई पहली हुकूमत हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप चलाएं. जिन्ना साहब ने क्या कहा था, कायदे आज़म ने क्या कहा था कि मैं मुल्क अपने लिए बना रहा हूँ. बाद में जब अक्सरियत आप लोगों की वोट बैंक होगा तो मुसलमान दब जाएंगे, वही माइनॉरिटी का मसला होगा हमारा. इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ख़ास नहीं है. लोग कहते, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यूपी के अंदर पिछले 2-3 साल पहले जो बड़ा इलेक्शन हुआ था उसके अंदर आई थिंक एक भी मुसलमान MP नहीं आया था, जिसके अंदर 40% उनकी पॉपुलेशन मुसलमान है. और यूपी इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस. कैन यू इमेजिन? यहाँ पे सिंध के अंदर कहीं भी अंदर वी हैव हिंदू माइनॉरिटी ब्लॉक सीट्स, कोटा सीट्स, ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए नेशनल असेंबली में. वी प्रोटेक्ट देयर राइट्स बिकॉज व्हाट आवर इस्लाम टीचेस दिस. आवर इस्लाम टीचेस दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट देम इन कोटा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये इंडिया में नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए. नॉट लाइक अस. वी हैव मोर प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान देन इंडिया हैज़ फॉर इट्स ओन माइनॉरिटीज़. एंड जो आप आज देख रहे हैं जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे मुसलमानों के नॉट ओनली खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जो सारी अब चीज़ें ये चल रही है बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. नेक्स्ट. इसी के साथ साथ जब करारदात मकासद पास हुआ मार्च 12 को, जस्ट लास्ट मंथ 75 ईयर एनिवर्सरी, उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी भी कायम की जिसके अंदर आपको पता है ख्वाजा निज़ामुद्दीन ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर
द सोल पर्पस ऑफ दिस कमेटी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स पूरी रियासत के क्या बनेंगे। इन्हें 3 कमेटीज़ बनाई, एक सब कमेटी ऑन फेडरल एंड प्रोविंशियल, पे एक सब कमेटी ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज और एक सब कमेटी ऑन जुडिशरी। नेक्स्ट, और जो इनकी पहली रिपोर्ट आई अक्टूबर 1950 में, कॉल्ड द इंटरम रिपोर्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, पहली लाइन में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, the objective resolution should be incorporated in the constitution as direct principles of state policy, subject to the provision that this will not prejudice the incorporation of fundamental rights in the constitution in its proper place. So ये caveat जो शुरू में डाला गया उनका ये था कि देखें आ तो जाए लेकिन prejudice ना हो fundamental rights का। अब शुरुआत हुई डिबेट की कि इसका मतलब क्या था और आगे जाके हमें पता होगा कि how it happened. Next, एजुकेशन के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पॉइंट नंबर 2 इंटरनल रिपोर्ट में कि मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी लाइव्स ऑन स्फीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज एनेबल देम, एंड देन also it details of such activities and it is not possible to detail in the constitution, but the incorporation of the objective resolution however as direct statement would guide the governments of the center and units in this respect. मतलब सेंटर और प्रोविंस की पॉलिसीज़ जो हैं ताकि मुसलमानों को इनेबल करें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली कर सकें। एंड देयरफॉर अमंग अदर थिंग्स एक एम्फेसिस दिया कि कंपल्सरी टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, जिसके अंदर आपके पास कुरान और सुन्नत के अंदर जो उसकी टीचिंग है आज भी आप देखते हैं। हमने अच्छा पिछले साल और अच्छी इस साल ही हमने देखा था और लास्ट ईयर आई थिंक काफ़ी रेजोल्यूशन और पास भी हुए थे पार्लियामेंट्री असेंबली एंड ऑल दैट दे नीड टू टीच कुरान इन स्कूल्स। HEC ने एक नोटिफिकेशन लास्ट ईयर निकाला था कि कुरान को नॉन क्रेडिट कोर्स के साथ हर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के साथ लगाया जाए। दिस इज पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आगे नेक्स्ट, अगेन आई एम गोइंग टू बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम का मुख्तसर, वो तो बहुत बड़ा लेक्चर है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन ही आप समझ लें तो बड़ी बड़ी बात है। तो हमारे जो आपके श्री चंद्रा साहब थे जो पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, इन्होंने इंटरम रिपोर्ट के पीछे भी लग गए कि नहीं ये सही नहीं बनी और कहा गया कि भाई इस्लाम तो किसका इस्लाम, यहाँ पे तो 4-5 दुकानें मोल्ला ने खोली हुई है, हम कौन सा जानते हैं। तो हर दफ़ा एक ना एक रुकावट। तो उलमा ने इस चीज़ का क्या जवाब दिया? नेक्स्ट, उलमा के जो जिसको कहते हैं हम 22 नुकात। नेक्स्ट, सैयद सुलेमान नदवी साहब उस वक्त जो चेयरमैन तालीमात बोर्ड तालीमात के थे एंड वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान लॉ कमीशन, इन्होंने सारे उलमा को पूरे पाकिस्तान में जमा किया। 31 उलमा फ्रॉम शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, बांग्लादेश से, KPK से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से इकट्ठे किए और मुत्तफिक हुए ये चीज़ बताने के लिए कि यहाँ पे हम बंटवारा नहीं है इस बात पे कि मुल्क क्या होगा। नेक्स्ट, तो उन्होंने अपने 22 नुकात निकाले, आप खुद पढ़ लें क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं आप हैरान होंगे। माइनॉरिटीज़ का भी जिक्र हुआ है, कोई भी शहरी जो इसके साथ नहीं है, फ्रीडम्स नॉन मुस्लिम्स के साथ भी है। और जो भी आपने मुआहदे किए हैं, जो पॉइंट 11 जो हम डिस्कस कर रहे थे, ऑल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज इंटर्ड इनटू नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट विल टू बी ऑनर्ड इन अकॉर्डेंस विद शरिया। Non-Muslim citizens were granted fundamental rights on par with Muslim citizens. ये उलमा कह रहे हैं, ये मैं और आप और लिबरल कोई इस्लामिक फ़िलासफ़र नहीं लिख रहा। ये 31 उलमा बाकायदा साथ मिल के उनने ये मुआहदा किया है और पेश किया कि आप कह रहे हैं हमारे यहाँ बंटवारा है। तो हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान में किसका इस्लाम, तो आपको पता है जवाब में आपको क्या कहना है? हमारे अपने पाकिस्तानियों का इस्लाम। क्योंकि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अंदर अगर 20 मेंबरान के अंदर किसकी रिप्रेजेंटेशन है? हमारी अपनी है। वहाँ पे अहले हदीस भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे सुन्नी हजरात भी बैठे हैं, बरेलवी, दियोबंदी, आप नेम करें, शिया हजरात, उनके उलमा भी बैठे हुए हैं आलिम। और आपको पता है करारदाद ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो फैसले हैं 95% मुत्तफिक हैं। कहाँ रही ये डिबेट? ये एक बड़ा सा मिथ है। ये भी मिथ अपने जहनों से आप निकाल लें कि इस्लाम के अंदर ये कोई बंटवारा आपस में लड़ बैठते हैं। दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। वो जो 5% पे थोड़ा सा माइनर नोट्स पे होता है वो ठीक है, डिसेंटिंग इज़ फाइन ऑन स्मॉल इशूज़, बट मेजर जो है ये 22 नुकात पूरे एग्री किए हैं इन लोगों ने। नेक्स्ट, तो जब ये इनका रिस्पॉन्स हुआ 1951 जनवरी में ये 22 नुकात का, तो उन्होंने पाकिस्तान लॉ कमीशन कायम किया जिसके अंदर इनके नाम आपको ये आज भी सुप्रीम कोर्ट की आप चले जाएं म्यूज़ियम, इट्स ओपन टू द पब्लिक।
आपको ये नज़र आएगा, जिसके अंदर उन्होंने जो है मुफ्ती जाफ़र की शिया हज़रात की रिप्रेजेंटेशन और सैयद सुलेमान नदवी साहब को इस कमेटी का मेंबर बनाया। आप सोच सकते हैं उलमा को लॉ कमीशन का क्यों बनाएंगे, क्या क्या गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त। देखें हमारा आईन नहीं बना, जो लॉज हमने लिए थे वो ब्रिटानिया से लिए थे, इनहेरिट किए थे 1935 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कहा गया, द स्टैट्यूट बुक ऑफ पाकिस्तान बी स्क्रूटनाइज्ड विद अ व्यू ऑफ रिमूविंग इनकंसिस्टेंसीज if any of the laws existing in Pakistan and principles embodied in the objective resolution, it violates that. ये 1957 में एक और बार कायम हुआ, because जब 56 का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उन्होंने फिर एक और बार इसको कायम करना पड़ा। So as you can see, ये कहा क्या गया कि this needs to line up with the objective resolution, and if it does not, identify it, flag it, and it needs to be changed or amended or removed. Next. एक अर्ली केस, इसको स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट, आई वांट टू मूव ऑन। तो शुरू वाले साल में बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ, बिकॉज हमारे अपने इतने मसले चले, वी नेवर गॉट टू रियली हैव इट्स ट्रू इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पॉलिटिकल स्ट्रगल फिर उलमा और पब्लिक के साथ भी रहा है। फिर जो है बड़ी मज़ेदार बात यह कि मौलवी तमीज़ुद्दीन और 200 जो बहुत मशहूर केसेस थे, उसके अंदर एक भी जिक्र नहीं है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। सबसे हैरान दी बात, कोई गुफ्तगू के अंदर भी नहीं है। लेकिन बाद में आपको पता है अस्मा जनानी केस में 1972 के अंदर 200 को हराने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जजेस ने रिलाई किया। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोट मैंने फॉर्मर चीफ जस्टिस हमारे मोहम्मद मुनीर, जो बड़े कंट्रोवर्शियल भी थे 200 केस में, आपको पता है इन्होंने क्या कहा, खुद अपने अल्फाज हैं इनकी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के बारे में सेकंड कोट पढ़ लें, सॉवरेंटी implies an unqualified power of enacting, amending or repealing laws, constitutional or not, but the legislature in an Islamic state is not sovereign in the sense because it does not have the power to make a law that it likes, that power being limited by the restrictions imposed by Islam on lawmaking, which are permanent and cannot be removed by any progress of legislation. आप सोच सकते हैं ये चीफ जस्टिस जो 200 केस को लेके आए थे, बाद में इनको जरा एहसास आया 1965 में लिखने बैठ गए कि भाई चीज़ें हुई थी ये सही नहीं थी। नेक्स्ट, सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विल जस्ट गो थ्रू दिस फास्ट। नेक्स्ट, वर्बेटम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले वाला था उसके अंदर डाल दिया गया। इन एडिशन टू दैट एक लाइन डाली गई। मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा आप तारीख में जाए तो आपको एहसास होता है कि शुरुआत कहाँ है और कहाँ जाना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले उन्होंने एक लाइन डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, whereas the founder of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, declared that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice. Very clearly, in our first constitution, this line was put. Before Qaradat-e-Maqasid, this line, it doesn't exist anymore. मैं आपको क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो आइन पास किया वो लाइन लिखी गई। सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि शुरुआत हमारी कहाँ है और कहाँ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और हमें कहाँ इसको लेके जाना है। दूसरी बात ये कि उन्होंने बाकायदा रिपब्लिक को डिक्लेयर कर दिया एज एन इस्लामिक रिपब्लिक, विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग। दे डिडंट डिक्लेयर इस्लाम एज रिलीजन ऑफ द स्टेट, वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दे डिक्लेयर्ड इट एज एन इस्लामिक रिपब्लिक फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको पता है दुनिया में कितने इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं? सवाल, I'll give you a hint, अभी एक का सदर अभी होके गया, ईरान, पाकिस्तान और एक और भी है जो पता नहीं है, मोरितानिया। अब इस्लामिक रिपब्लिक इज़ अ पॉलिटिकल मॉडल दैट वाज बेस्ड ऑन अल्लामा इकबाल। आप खुद जाके, मैं वहाँ पे गुजर रहा था चौक के पास, में लिखा हुआ था पाकिस्तान इन ईरान द लैंड ऑफ इकबाल एंड सादी। मैंने कहा इस चीज़ को ही अगर हम कैप्चर कर लेना तो सारी चीज़ें पे समझ में आ जाएंगी। वही चीज़ हमने कैप्चर नहीं की। और मैं तो इतना खुल के कहता हूँ कि जिस तरह से ईरान ने वो चीज़ को कैप्चर किया, हम थोड़े से उनसे पीछे हैं। वी लिटरली उससे पीछे हैं। मतलब हमारे हर लेवल से, हर लिहाज से। हमने तो अल्लामा इकबाल डे, चलो वो एक छुट्टी के दिन है, मुझे पता है आप तो माशाल्लाह जितने आते हैं तो अच्छी बात है, वो ज़रा आ गया था। बट इकबाल का जो एक्चुअल फ़िलासफ़ी थी, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, उसको तो वी आर वेरी फार अवे फ्राम दैट। वी हैव इट्स इंक्लिंग्स, वी हैव इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, वो इकबाल का कहना था। इकबाल ने कहा था कि जो कानून साजी के जो ग्रुप होंगे उसके अंदर उलमा को मौजूद होना है। It's a very detailed discussion. Until you go into the history books, you'll realize what we missed. Next, 1962 में इवन अयूब खान ने भी इसको डाल दिया कुछ हद तक, एक दो लाइनें रिमूव की थी, फिर सीधा अवाम और पूरी जुडिशरी और लॉयर्स मूवमेंट में स्टार्ट करके कि भाईजान ये आप कर ही नहीं सकते, आप वापस लेके आए जो था पहले।
और पहले ही अमेंडमेंट 1962 में जो पास हुआ था 63 के एंड में 64 में लागू हुआ, वो उन्होंने विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स वापस डाल दिया क्योंकि अयूब खान ने वो चीज़ हटा दी थी, और जहाँ पे एज सेट आउट बाय होली कुरान सुन्नत जो हटा दी गई थी वो भी वापस डाल दिया गया. So even a man like Ayub Khan, the chief martial law administrator who could do everything, who could not change this because the impact was so much of the people and what this meant. Next, advisory council. फिर अयूब खान ने सोचा चले कुछ बना लेते. पाकिस्तान लॉ कमीशन ख़त्म हो गया 57 के बाद, तो इसको बनाने में उन्होंने एडवाइजरी तक दे दिया कि चले, ताकि वो एक एड्रेस हो, एक कंसर्न था कि कानून जो है इस्लाम के साथ है कि नहीं है. So they made this, and but it was in one sense you can say that the true implementation was after the 1973 जो आज हमारा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, that is not just recommendation or advisory but has binding as well in certain ways. और उसका डिस्कशन खैर एक अलग लेक्चर में करना पड़ेगा, but we should go next. तो ये आगे चलें. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब 1973 का आया, भुट्टो का एक जो बहुत अच्छा काम था, इन्होंने सबको साथ लिया. मैंने कहा देखे भाई ये अब हिस्सा बन गया, अब सबको साथ बैठ के इसको बनाना है. और उस वक्त फिर उलमा भी मौजूद थे, तो उन्होंने जो है इस चीज़ को बड़ा गौर फिक्र और बहुत मीटिंग्स हुई. इस पूरा इसकी तारीख आप पढ़ लें, इसका प्रोसेस 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप हैरान होंगे किस किस को इन्वॉल्व किया. सर ने भी बहुत इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी किया, जो IPS के हमारे हेड हैं. तो बड़ा इन्होंने जो है उलमा को भी साथ लिया, और उन्होंने फिर सोचा कि करारदाद मकासद को इसके अंदर भी मौजूद होना है. So they made it again a part and parcel, and they also introduced Article 2 that openly declared that Islam is the state religion of Pakistan. Next. अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब थोड़ा सा इसका रिवाइवल अयूब खान के टाइम पीरियड में थोड़ा सा दबाव हुआ, एडवाइजरी तक आया, तो जो मेन केस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अस्मा जलानी केस, 200 केस को उड़ाने में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हाथ था. एंड विदाउट दैट इट कुड नॉट हैव बीन रिमूव, जिसके अंदर जस्टिस सज्जाद ने बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज जो आज तक हम दोहराते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस मुल्क का ग्रैंड नॉर्म है. इट इज़ द ग्रैंड नॉर्म, इट इज़ द जड़ ऑफ व्हाट दिस कंट्री इज़ बाउंड टू बी. उसके बाद एक फॉलो केस में, ज़ियाउर रहमान केस में, जस्टिस जो है हमूद रहमान साहब ने थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर दिया कि देखिए जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है तो सही, लेकिन इसको ज़रा जब तक वो कानून के अंदर फॉर्मली नहीं आए, अभी तो प्रीएम्बल नेचर है, तो उसका इतना वो नहीं होगा. नेक्स्ट, अस्मा जलानी केस, ये कोर्ट में आपको थोड़ा मुख्तसर बता दिया. नेक्स्ट, जस्टिस जुल्ला जो थे उन्होंने ख़ास एक इसको किया था, इसको ज़रा आगे कर देते, दिस गो टू डिटेल. ज़िया रहमान केस का भी कर दिया. नेक्स्ट, नाउ 85 से थोड़ा सा मैं इसको 2 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा. राइज एंड फॉल ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ज़िया साहब के बाद हुआ था. नेक्स्ट, ज़िया उल हक ने कि जस्टिस हमूद रहमान की बात को दिल पे ले लिया कि ठीक है आप कह रहे हैं ये प्रीएम्बल है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है. तो उन्होंने जो है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉल दी 8th अमेंडमेंट को बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, बाकायदा मेड द होल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज आर्टिकल 2A जो आज तक एग्जिस्ट करता है. इस एक्ट की वजह से एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स वर्ड्स, नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इम्पैक्ट and subjective value will now be influential in all the decisions of the state and the court's analysis. Next. So then 1985 से 1992 तक एक एक्सप्लोरेशन जोन हो गया. लोकल जजेस खड़े हो गए. आपको पता है सुमोटो कल्चर भी स्टार्ट हुआ था. उसके बाद जो पहला केस आया था मोहम्मद रमज़ान कुरैशी फेडरल शरीयत कोर्ट में, उसके अंदर उन्होंने कहा था द अथॉरिटी विच हैज़ बीन डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द पीपल फॉर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय हिम इन अ सेक्रेट ट्रस्ट. एंड बाकायदा एक पूरा एक्ट, सिविल सर्वेंट्स एक्ट, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को जो है लेफ्ट एंड राइट रिटायर कर सकते थे. उन्होंने कहा था ये वायलेशन है क्योंकि करारदाद मकासद के बेसिस पे ये वायलेशन है, तो उस एक्ट को ही उड़ा दिया, पूरे एक्ट को. सो इट शोज यू द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 2A. नेक्स्ट, जस्टिस तंजील रहमान वाज वेरी एक्टिव इन द सिंध हाई कोर्ट. इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें उड़ाई. इन्होंने कहा फेडरल शरीयत कोर्ट के भी हाथ बांध लिए थे कि भाई आप MFLO पे नहीं बात करें, ये नहीं करें. तो उन्होंने कहा फिर हम मेन कोर्ट हैं, हम बात करेंगे, फिर हम चीज़ें उड़ा देंगे, तो वो उड़ाने लगे. नेक्स्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी ये होने लगा. उन्होंने भी कहा कि भाई ये चीज़ें 2A को वायलेट कर रहा है, इसको भी उड़ा दो, इस एक्ट को भी उड़ा दो. तो काफ़ी एक ये जजेस की थोड़ा सा एक्टिविज्म आप देख रहे हैं. नेक्स्ट, फिर हकीम खान केस में आया कि भाई अब बहुत हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को उड़ा नहीं सकता, अलबत्ता इंटरप्रेट ज़रूर कर सकता है.
तो अब उड़ाने की बात आप प्लीज़ ना करें। तो इसमें ये केस के अंदर ये बात हुआ। सो nonetheless it could not strike down the constitution, but it is important that we need to intend its self-executionary to be adopted as a taste of repugnancy or not. तो ये ज़रा इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया। नेक्स्ट, कनीस फातिमा केस के अंदर ये मेन चीज़ ये है कि स्टैट्यूटरी लॉ इज़ डिफरेंट फ्राम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसको भी उन्होंने कहा कि भाई करारदाद मकासद तो उसको उड़ा नहीं सकता। अब कोर्ट्स ने कहा इट्स दैट्स नॉट व्हाट इट वाज मेंट फॉर, अलबत्ता उसको ज़रूर इंटरप्रेट कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट कर सकता है और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह समझते हुए कानून का आप एनालिसिस करें, बट उड़ा नहीं सकते आप। नेक्स्ट, 8th अमेंडमेंट के फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब कोर्ट्स थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के खिलाफ आ रही है, तो लोगों ने कहा 8th अमेंडमेंट ही उड़ा दें, आर्टिकल 2A को ही निकाल दें। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, आर्टिकल 2A जायज़ है और रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, एंड इट फॉर्म्स एज द बेसिस स्ट्रक्चर कि हमारा मुल्क क्या है, एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इस हद तक कोर्ट नहीं गई, उन्होंने कहा नहीं, आप ज़्यादा इसको मत समझें, आर्टिकल 2A हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, उड़ाएगा नहीं लेकिन इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट, मैं बस एंड पे आ जाता हूँ। फंडामेंटल राइट्स का बहुत वो है, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, लियाकत अली खान ने स्पीच में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स एज इनंसिएटेड बाय इस्लाम उसको वसी कर देते हैं। तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने किया। आपके कोर्ट केसेस मिलेंगे जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी हुए हैं और उनको और भी मज़ीद आगे दिए। नेक्स्ट, ज़हीरुद्दीन बड़ा एक मशहूर केस है जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक सख्त बयान दिया, जिसके अंदर मैं आपको कह सकता हूँ जो मेन पॉइंट है कि उन्होंने कहा एज़ पर आर्टिकल 2A Islam as contained in the Quran and Sunnah of the Holy Prophet are now the positive law of the land. That was a very strong statement जो आज तक controversy create करता है। Next, ये हाई कोर्ट में है। आखिरी बात जो मैं ज़रा एंड कर लूँ, जो आपके थोड़े से नज़र से गुजरा है, जो अगेन एक आपको ज़रा समझ ले, सू मोटो कहाँ से आया। ये सू मोटो को जो कल्चर जो है सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से पैदा हुआ, आपको पता है हमारे कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है? सू मोटो का इख्तियार ओनली फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आया? वेयर डिड द सुप्रीम कोर्ट, नाउ दे टेकिंग सू मोटो एवरी अदर डे। वो पुराने ज़माने में तो प्रीवियस चीफ जस्टिस तो बहुत करते थे, अब थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, बट दे यूज्ड टू डू अ लॉट। साकिब निसार के टाइम पीरियड, इफ्तिखार चौधरी के टाइम पीरियड, यू मस्ट हैव ऑल हर्ड इन द न्यूज़। The story of that begins with first this case Mohammed Halim, जिसके अंदर construing the interpretation of Article 184(3), which is the basis जहाँ पे सू मोटो पैदा हुआ, कि objective resolution को समझते हुए आप ये चीज़ भी समझें। Next, जो बेनज़ीर भुट्टो वाला केस था, जो birth of सू मोटो है, हमारे चीफ जस्टिस मोहम्मद अफजलुल्लाह को क्रेडिट जाता है। उनके अपने अल्फाज जो ओरिजिनल केस में उन्होंने कहा था, objective resolution is so fundamental and contains such mandates that cannot be repealed or abrogated and is permanent for all times to come. Next, इनके मशहूर क्वेटा डिक्लेरेशन triggered the culture of सू मोटो as we know it today. जस्टिस जुल्ला जब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने सारे जजेस को हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के क्वेटा बुलाया और क्या कहा अपने स्पीच के अंदर, मैं उसको मुख्तसर बता दूं कि ये मुल्क बना है, इसको 40 साल हो गए, अभी तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रियलाइज़ नहीं हुए। अब जुडिशरी की जिम्मेदारी है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रियलाइज़ कराना, तो आप सब एक्टिव हो जाएं। इस ऐलान के बाद 1991 में यू विल सी द स्टार्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उससे पहले नहीं है, ये जो केसेस सिविल सोसाइटी से आ रहे हैं वो इनके ऐलान के बाद हुआ है। सू मोटो जो हुआ है वो इसके बाद हुआ है। उस वक्त आपको पता है मैजिस्ट्रेट भी सू मोटो ले रहे थे। 1991 के केसेस आपको दिखा सकता हूँ, मैजिस्ट्रेट साहब अपने इलाके का सू मोटो ले रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, इधर मैंने न्यूज़ में खबर सुनी है, इसको नोटिस दे दो। दैट्स हाउ इट वाज इन द बिगिनिंग, एंड उसको फिर कंट्रोल करके आगे जाके नेक्स्ट उन्होंने मुख्तसर कर दिया। नेक्स्ट, जो एक अगेन मेन इम्पैक्ट मैं आपको ये फोकस ये भी करना चाह रहा हूँ, आज अगर आप लोग कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, जैसे शैला ज़िया का जो मशहूर केस है, उसका बेसिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। शैला ज़िया अपना काम कर ही नहीं सकती थी अनलेस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वो हैसियत दी जो जस्टिस जुल्ला ने दी। अब ये कहाँ जाएगा आगे जाके, टाइम का थोड़ा सा वो टाइम है। एक्चुअली इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई वांटेड यू टू वॉक अवे विद डीमिस्टिफाइंग सम ऑफ द ओरिजिन्स। आई वांटेड यू टू वॉक अवे विद अंडरस्टैंडिंग हमारा फाउंडेशन क्या है इस मुल्क का और इस डॉक्यूमेंट की हैसियत। और आज तक अगर हमारा आर्टिकल 2A कायम है
और आज तक अगर हम कहते हैं कि करारदाद मकासद is influential in interpreting the law, it still stands today. Where it needs to go from today, that's something that you guys will have to figure out. So without further ado, thank you very much. I know it might have gone a little bit over, so thank you for your time.